Welcome students in RP classes. Today we will continue exercise 9.1, some applications of trigonometry from class 10th maths NCERT chapter 9. Students, you can watch question 1 and 2 from my previous video. Link description box में मिल जाएगी. So let's get started. Question 3 is, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she want to have a steep slide at the height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक कॉन्ट्रैक्टर 2 टाइप्स की स्लाइड बनाना चाहता है पार्क में बच्चों के खेलने के लिए. फर्स्ट स्लाइड छोटे बच्चों के लिए बिलो 5 इयर्स, उस कम हाइट का 1.5 मीटर हाइट लेके जो 30 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से. और सेकंड केस में एक बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर हाइट लेकर जो 60 डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड से. हमें दोनों ही केसेस में स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है. सो वी स्टार्ट इन फर्स्ट केस. इन एंगल ABC हाइट 90 डिग्री एंगल पर होगी ग्राउंड से 1.5 मीटर. स्लाइड की लेंथ x मैंने ले ली है. सो वी हैव टू फाइंड x. इन राइट ट्राइंगल ABC. अब हमें इस क्वेश्चन में AB और AC के बीच में रिलेशन देखना होगा. सो वी राइट हेयर AB अपॉन AC इज इक्वल टू. नाउ स्टूडेंट्स, AB साइड अपोजिट टू थीटा, परपेंडिकुलर साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज. P upon H student sin theta. If you want to know how can we find P upon H sin theta, you can watch my first video in playlist. So AB is equal to 1.5 AC x is equal to sin theta sin 30. Sin 30 students 1/2. How to find sin 30 equal to 1/2? You can watch my second video, trigonometry table trick. So after cross multiply, we find x is equal to 1.5 into 2 is equal to 3 meter, 3.0 or 3 meter. Now in second case, the height of slide from ground is 3 meter. Slide making angle with ground 60 degree. We have to find length of slide. So we have to find relation between PQ and PR. In right triangle PQ upon PR. PQ student, angle side opposite to theta is perpendicular. Side opposite to 90 degree, again hypotenuse. So P upon H student sin theta. PQ 3 meter given. PR मैंने लेट किया है y. So is equal to sin 60. Sin 60 स्टूडेंट्स √3/2 होता है. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई वी कैन फाइंड y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 अपॉन √3. मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई √3. here 6 √3 upon 3. 3 2 जा 6. So answer is y is equal to 2 √3.
2√3 meter is answer. I repeat it again. Students, in first case छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बनानी है, 1.5 मीटर हाइट लेनी है और स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है. स्लाइड 30 डिग्री एंगल बना रही है ग्राउंड से. सो AB अपॉन AC, P अपॉन H साइन थीटा, AB 1.5, AC X साइन 30, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 2 3.0 और 3 मीटर. सो X इज इक्वल टू 3 मीटर. फर्स्ट आंसर. इन सेकेंड केस बड़े बच्चों के लिए स्लाइड बनानी है 3 मीटर हाइट लेकर. स्लाइड 60 डिग्री एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ. स्लाइड की लेंथ मैंने y ले ली. सो PQ अपॉन PR इज इक्वल टू P अपॉन H, साइड अपोजिट टू थीटा P, साइड अपोजिट टू 90 H, साइन थीटा 60. सो 3 अपॉन y इज इक्वल टू साइन 60 इज इक्वल टू √3/2. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट y इज इक्वल टू 3 to the 6 upon √3, multiply and divided by √3, we get 6 √3, √3 multiply √3 3, so 3 divided by 2, 6 divided by 3 equal to 2√3 meter. Hope you understood. Now we start next sum. The question is, an angle of elevation of top of tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है. ये हाइट h मीटर हाइट की कोई टावर है, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, वहां से 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है और वो पॉइंट ग्राउंड टावर से 30 मीटर डिस्टेंस पर है. स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन ऑफ साइड विथ हॉरिजॉन्टल. ये लाइन ऑफ साइड है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं. या हम कह सकते हैं जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हाइट के साथ जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ, उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं. तो ये एंगल AC और BC जो एंगल बना रहे हैं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया. ठीक है, ये हमें 30 डिग्री गिवन है और हमें ये हाइट फाइंड करनी है टावर की. सो इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ABC, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC. हमें इसमें AB अपॉन BC के बीच में रिलेशन देखना है. AB स्टूडेंट्स साइड अपोजिट टू थीटा यानी परपेंडिकुलर. BC ये परपेंडिकुलर हो गया, साइड अपोजिट टू थीटा, साइड अपोजिट टू 90 हाइपोटेन्यूज. सो दिस साइड बिकम्स बेस. सो BC इज बेस. P अपॉन B स्टूडेंट्स tan थीटा. I again repeat, if you don't know, you can watch my first video in playlist. So P upon H tan theta. Now put the value. AB is equal to H, BC is equal to 30 meter given, theta is equal to 30 degree given, tan 30 is equal to 1 upon √3. So students, tan 30 1/√3. अगर आप नहीं जानते हो तो मेरी सेकंड वीडियो ट्रिग्नोमेट्री टेबल ट्रिक देख लो, थीटा की वैल्यू फाइंड करना आ जाएगा आपको. सो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई H इज इक्वल टू 30 अपॉन √3, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई √3, वी गेट 30 √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 3, कैंसिल होके 10 आएगा. सो इट बिकम 10 √3 meter. 10 √3 meter is our answer. I repeat it again. Angle of elevation top of tower from point of ground. ये point of ground है, इससे angle of elevation ये 30 डिग्री बन रहा है, which is 30 meter away from ground. ये BC 30 मीटर है. Foot of tower angle 30 डिग्री है. Find the height of tower. हमें height find करनी है. So we find the relation between AB and BC. So AB upon BC is equal to P upon B.
थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, सो थर्ड साइड बिकम्स बेस, सो P upon B tan थीटा, H P इज इक्वल टू H और BC इज इक्वल टू 30 मीटर, सो H अपॉन 30 इज इक्वल टू tan 30, थीटा 30 गिवन है, tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई 30 √3 30 upon √3, sorry, 30 upon √3 multiply and divided by √3, so we get √3 multiply √3 3 से इसको कट किया 10 √3 is answer. Student, hope you understood. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for latest update. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Thanks for watching.